Now today's topic, that's the counter current mechanism. Very, very important topic, that how does our urine becomes concentrated with the help of this nephron as well as blood capillary over here, right? So first thing, basic already you have learned for that in yesterday session, that Henle's loop main over here vasa recta hai, and other is a which one? Nephron. Counter current mechanism name is given, right? Why this counter current? Because when we see this filtrate movement, from which one? Descending to ascending, उसमें ये direction है, descending to ascending. Now next, peritubular capillaries are there, right? Peritubular capillaries, उसका direction होता है opposite, descending to ascending. मीनिंग जहां पे नेफ्रॉन का डिसेंडिंग आता है वहां पे कैपिलरी का एंड नेफ्रॉन का असेंडिंग है वहां पे कैपिलरी का विच वन? डिसेंडिंग. ये समझ में है? टू सिस्टम वर्किंग, काउंटर सिस्टम वर्किंग ओवर हियर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वन डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सो अदर विच वन? असेंडिंग टू डिसेंडिंग. पहले ये क्लियर हुआ, राइट? नाउ peritubular capillaries, याद है peritubular capillaries? Efferent arteriole form that network surrounding the nephron parts. Peritubular capillaries over there, the part which is come U shape with this Henle's loop, we call what? Vasa recta. This one we call vasa recta. Next one, Henle's loop. Descending तो एक ही टाइप का डायमीटर है, but in ascending limb of Henle's loop, two parts are there. Lower thin segment is there and here thick segment is there. Thin segment of ascending limb of Henle's loop, thick segment of ascending limb of Henle's loop. ये जो thick होता है ना, वहां से ionic form में सोडियम क्लोराइड reabsorbed होते हैं. Reabsorption meaning? So from here, ये parts में basically Na plus Cl minus in this way. Na plus and Cl minus. ये ionic form है. Ionic form के लिए active transport चाहिए. Which one? Active transport. Remember, reabsorption. So by this one, these are involved in which one over here? This thin part involved in active transport of ionic form sodium and chloride. यहाँ से कौन सा हो जाता है? Simple. That is salt form NaCl. Clear? Next, Henle's loop, descending limb of Henle's loop is permeable for water. So water comes out. Water बाहर आ रहा है यहाँ पे, yes or no, right? Next one, when water comes out over here, so this filtrate become what? Concentrated, hypertonic. यहाँ तक clear? Now next one over here. When we come to this part, ascending limb of Henle's loop is permeable for salts, electrolytes. So when salts come out meaning यहाँ पे क्या present होगा? Wrong. Fluid. याद है? Interstitial fluid. Here the fluid is present and that we call the which one? Interstitial fluid. बोलिए, समझ में आया पहले? Here जहां पे भी आपको गैप दिख रहा है ना, स्पेस, ओवर देयर फ्लूइड इज देयर एंड इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है. वेरी क्लोज ब्लड वेसल एंड दिस नेफ्रॉन्स आर रिमेन अटैच नहीं होंगे बट क्लोजली दे आर लोकेटेड, राइट? ऐसे अटैच फॉर्म में नहीं, बट विच वन? क्लोजली लोकेटेड. सो इजीली दैट द एक्सचेंज ऑफ दैट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी पॉसिबल. क्लियर? बट यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है तो गैप्स ज्यादा है. नेक्स्ट, सो बिटवीन दैट द फ्लूइड इज प्रेजेंट. दैट फ्लूइड वी कॉल विच फ्लूइड? फ्लूइड वी कॉल क्लियर. वो कहाँ पे होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, नेफ्रॉन एंड दी वासा रेक्टा. इवन जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है सभी, जहाँ पे गैप है वहां पे क्या फील्ड है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. क्लियर? नेक्स्ट वन, सो as and when salts come out, salts बाहर आ रहे हैं, yes or no, right? ये fluid है, यहाँ पे यहाँ से क्या आ रहा था? Water. With that here that the salts are there. तो यहाँ पे कौन सी condition arise हुई? Outside the nephron कौन सी condition arise हुई?
Hypertonic. समझ में आ रहा है? Outside the condition, which one? Nephron, that's a hypertonic. Clear this thing here, which one? Hypertonic. Understand this thing. Now, next is a which one? So, due to this hypertonic, ये hypertonic condition सभी जगह पे present है, right? अगर हम इसमें hypertonic consider करेंगे, नहीं, salts come out. नेफ्रॉन की बात नहीं कर रही हूं मैं, आउटसाइड दी नेफ्रॉन बात कर रही हूँ. सॉल्ट ज्यादा है तो वो क्या हुआ? हाइपरटोनिक. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मैंने लिखा है, नेफ्रॉन में नहीं लिखा है. कहाँ पे लिखा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सो दैट इज द विच वन? हाइपरटोनिक. अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट वन. सो अंडरस्टैंड कि यहाँ सभी जगह पे क्या है? हाइपरटोनिक. ये क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे हाइपरटोनिक है तो यहाँ पे हम नेफ्रॉन में क्या कंसीडर करें? हाइपोटोनिक. एक में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एक में कम है. हाइपोटोनिक का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूट. डाइल्यूट को भी अगर हम अदर टर्म में अंडरस्टैंड करें तो क्या? वाटर मोर, सॉल्ट लेस. ये समझ में आता है, राइट? एंड वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम higher concentration of water to lower concentration of water. So now tell me, ये जो नेफ्रॉन का यहाँ से तो वाटर नहीं आ सकता because this part is permeable for only salt. Forget about that. Next, the other parts are there. That is the DCT and other is a which one? Collecting duct, right? So over here, due to the salts come out, it creates hypertonic condition in interstitial fluid. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ये कलेक्टिंग डक्ट, अभी सिर्फ इसको ही कंपेयर करना है आपको. इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड अदर इज अ विच वन? कलेक्टिंग डक्ट. तो किसमें हाइपरटोनिक हुआ? इसमें हाइपरटोनिक. एंड द कलेक्टिंग डक्ट में हाइपोटोनिक. हाइपो मीनिंग more water, salt less. And water will move from higher concentration of water to lower water. This is the osmosis basically, right? So water will move from where to where? Nephron to capillary, sorry, nephron to interstitial fluid or interstitial fluid to nephron. Because collecting में हमने क्या consider किया over here? Which condition? Hypotonic. Which one? Hypotonic. पहले ये समझ में आया? Yes or no? You know ना, that's when salts come out, filtrate gets filtrate gets dilute. सॉल्ट बाहर आएंगे तो फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट कहाँ पे होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और नेफ्रॉन. अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, राइट? नेफ्रॉन इनसाइड दैट फिल्ट्रेट, सो फिल्ट्रेट बिकम्स डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड. हाइपो और हाइपर? Hypotonic. So we consider here hypotonic condition now. In nephron, collecting duct also. Whereas in the interstitial fluid, salts are coming through this ascending part of Henle's loop. So that hypertonic condition, water will move from hypo to hyper. ये समझ में आ रहा है? Water will move from hypotonic. क्यों hypotonic? Because hypotonic में क्या होता है? Water more, salts come. And water will move from higher concentration of water to lower. So higher concentration water कहाँ पे हुआ? Collecting. That's why can you make out? Collecting duct से कितना water interstitial fluid में आ रहा है? And interstitial fluid से gradually that enter into the which one actually? This that's a capillary. Which one? Capillary. Right now over here ये part जो है ना, ग्रेजुअली यहाँ से वो एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे अभी भी क्या है? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. सॉल्ट ज्यादा है, हाइपरटोनिक. तो ये ब्लड कैपिलरी जो है ना, यहाँ से वाटर का मूवमेंट भी क्या दिखा है? आउटवर्ड. सॉल्ट्स का आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट प्रेजेंट इन दिस ब्लड कैपिलरी. तो ब्लड कैपिलरी में यहाँ पे इन्वर्ट दिया है सॉल्ट के लिए, एज वेल एज वाटर का क्या हो रहा है? आउटपुट, राइट? सॉल्ट का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे. सॉल्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट एंटर इनटू व्हिच वन? लोअर. हियर इन दैट्स अ ब्लड कैपिलरी. तो सॉल्ट एंटर हुआ. आउटर क्या हो रहा है? हाइपरटोनिक कंडीशन है. सारा के सारा सॉल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ओनली वेरी लेस अमाउंट, राइट? Excess amount will be remain in which one? Urine filtrate, right? And remember one thing, the only the required salts
that enter into the blood capillary and then remain in our body fluids. Right? Excess जो भी होंगे क्या हो जाएंगे? Removed through removed into through the which one? That is the filtrate or urine. Some remain in the which part? Interstitial fluid. Because interstitial fluid कभी भी hypotonic नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? क्यों इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक नहीं रहना चाहिए? विच वन? अगर यहाँ पे हाइपो हुआ, आप सोचो रिवर्स, यहाँ पे हाइपो है ना, तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे हाइपर, एक हाइपो तो दूसरा क्या होगा? हाइपर. एक यहाँ पे हाइपो है तो यहाँ पे हाइपर, यहाँ पे हाइपो है तो यहाँ पे हाइपर. कंपैरिजन रहेंगे ऑलवेज, हाइपो हाइपर इन दैट वे. अगर यहाँ पे वाटर ज्यादा है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू, तो फिर वाटर तो यूरिन में जा रहा है. राइट? दैट्स व्हाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑलवेज रिमेन व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक. एंड दैट ग्रेडिट कौन इसमें हेल्प कर रहा है? टू मेक द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिकम्स दैट द कॉन्सेंट्रेटेड ऑलवेज. कौन उसमें, कौन, किसको आप क्रेडिट दोगे इसका? वो तो है ही, बट विथ सॉल्ट NaCl. One of them is NaCl and second that is this urea. Second is a which one? Urea. Again it's a one kind of salt. Urea again it's a one kind of what? Salt. Small amount of urea which can be there with by our body, right? So that much amount of urea come back from the bottom portion of the collect. यहाँ से नहीं आएगा कभी. Which one? Bottom part of the collecting duct. So this much portion again becomes what? Much more concentrated. NaCl भी आया, यूरिया भी आ रहा है, जितने salts है, mainly these two salts, which helps to make the interstitial fluid become hypertonic. So maximum amount of water जितना भी है वो क्या कर दे? Reabsorbed, body में रहे. Minimum amount of water should be released out in excretion. One more time. First, Henle's loop याद रखिए, descending to ascending. Second, capillary है, ascending to और descending to ascending. ये movement descending to ascending, right? Counter in a opposite in a which sense कि जहां पे ये क्या है? Descending. तो capillary का क्या है? Ascending. यहाँ पे नेफ्रॉन का क्या है? तो कैपिलरी का देखो मूवमेंट, नहीं यहाँ से इफ्रंट आर्ट्रियोल आएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा एंड देन. बोलिए, समझ में आया? नाउ हेनलेस लूप, दिस पार्ट इज परमिएबल फॉर वाटर. वाटर कम्स आउट, सो फिल्ट्रेट बिकम. आप देखिए यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, फिल्ट्रेट बिकम व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड. यस और नो? तो यहां से जब वाटर बाहर आएगा, राइट, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होती? तो वाटर कहाँ पे चला जाएगा? ग्रेजुअली एंटर इनटू ब्लड कैपिलरी. समझ में आ रहा है? एंड ये ब्लड कैपिलरी तो ग्रेजुअली बॉडी में ही जा रहा है, रीनल वेन बन जाएगा, रीनल वेन टू वेना कवा. तो वाटर आ रहा है बॉडी में रिटर्न. एट द सेम टाइम यहाँ से सॉल्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दैट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू दिस वासा रेक्टा. राइट? काउंटर करंट मैकेनिज्म के मेन 2 पॉइंट्स है दैट interstitial fluids should remain what? Hypertonic. That credit goes to and urea. Urea कौन से पोर्शन से आएगा? And the NaCl? Ascending limb of Henle's loop, right? That's given what? That NaCl, and makes the interstitial fluid over here what? Concentrated hypertonic. Right? So large amount of water can be come into which part? Interstitial fluid, and gradually that thing enter into over here and require water and the salts reabsorbed. Right? कितना जनरली फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब होता है? 99% फिल्ट्रेट गेट्स रीएब्सॉर्ब. बाय दिस वे 99% क्या हो जाता है? मैक्सिमम वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है. अंडरस्टूड दिस थिंग? बोलो. दिस वन, विच वन? यहाँ से. हाँ हाँ, बिकॉज हाँ, वन थिंग ओवर हियर, यहाँ पे कौन सा पार्ट रहेगा?
hypertonic. So what? Small, very less amount of water, ये capillary है, very less amount of water that comes over here, but gradually that fluids when reach over here, तो यहाँ पे conditions सारे क्या हो गए? Change. यहाँ पे hypotonic होता है, यहाँ पे hypertonic. यस यस, वो रीएब्जॉर्प्शन में ही जाएगा. क्लियर, राइट? चलो, फर्स्ट इतना क्लियर हुआ. सेकेंड पॉइंट याद रखना, दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज नीडेड. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीनिंग व्हाट? क्लोज, दैट्स द प्लेसमेंट of this nephron and the vasa recta is needed for this exchange. Distant में नहीं होना चाहिए. Which one? Closely allocated or close proximity between these two is needed. Clear? Organism, mammals में जनरली ये है, that's a counter current mechanism. Different organism, किसी में ये भी है कि Henle's loop absent होता है, right? Different organism in that different, that's a methods, processes are there. हम सिर्फ human का right now learn कर रहे हैं, so we are going to learn only this thing. Clear? Remember here जो values दिए 300, 400, 600, 1200 है ना? मिली ऑस्मोल पर लीटर. यूनिट क्या है उसका? मिली ऑस्मोल पर लीटर. ऑस्मोल दैट इज सॉल्यूट्स. ऑस्मोल का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूट्स पर लीटर. अगर हम 1000 ml मीनिंग 1 लीटर हुआ, यस और नो? 1 लीटर बोलू या 1000 ml, है ना? हाँ, सो 1 लीटर और 1000 ml अगर हम ये फिल्ट्रेट को निकाले एंड ऑब्जर्व एंड एनालाइज करें, सो इन दैट कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है? ये पोर्शन में 300. फिर जैसे जैसे फिल्ट्रेट पास हो रहा है, यू नो फिल्ट्रेट बिकम्स व्हाट? डिसेंडिंग में. तो नंबर सॉल्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं. 400 हुआ, 600, 800, 1000 एंड 1200. दिस इज द लास्ट. इनिशियल कितना आया था पीसीटी के साथ? 300. वासा रेक्टा में आके सॉल्ट्स का कितना हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वाटर कम्स आउट. समझ में आ रहा है? तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से वो कितना हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. 4 times यूरिन बिकम व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड. समझ में आया? यूरिन बिकम्स, आप वो 99% से अंडरस्टैंड करने जाओगे कि 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है 1%, तो 4 times कैसे हुआ? वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है. ये जो स्टेटमेंट है ना, अवर यूरिन फिल्ट्रेट, यूरिन भी नहीं, filtrate becomes 4 times concentrated in reference to this thing. 300 milliosmol per liter से वो कितना हो जाता है? 1200. 300 से 1200, 4 times हुआ, right? Next one. After that, next when we see over here, वापस से यहाँ पे क्या होगा? Water comes out और salts come out, तो वापस से वो dilute हो रहा है. जैसे जैसे डाइल्यूट हो रहा है, ऑलमोस्ट उसमें ऑस्मोलरिटी क्या आ जाता है? सेम, राइट? ऑस्मोलरिटी क्या आ जाता है? सिमिलर. तो वो सॉल्यूट्स बाहर लाना है, वाटर बाहर लाना है. दिस थिंग रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. टू मेंटेन व्हाट? ऑस्मोटिक सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर सिस्टम. दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नीडेड. ये देखो यहाँ पे है नेफ्रॉन फिल्ट्रेट. ये क्या है? ब्लड कैपिलरी. तो उसमें भी 300 है. ग्रेजुअली सेम इसमें भी जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज. 1200, राइट? वापस से इसमें वाटर ऐड हो रहा है, डाइल्यूट होगा. यहाँ से जो NaCl है ना, राइट? यहाँ से वेरी लेस वाटर, यहाँ से मेन क्या एंटर हो रहा है? NaCl. तो NaCl एंटर हो रहा है तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट यहाँ से रिवर्स, यहाँ पे क्या एंटर होगा? वाटर, राइट? सिंपल लैंग्वेज में ये लिम्फ क्या रिलीज कर रहा है? सॉल्ट. तो ये कैपिलरी सॉल्ट को लेके आ रही है दिस साइड से. नेक्स्ट यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? तो ये कैपिलरी क्या लेके जा रही है? वाटर. सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स गेट रीअब्सॉर्ब्ड एंड यूरिन एट द सेम टाइम यूरिन आल्सो बिकम व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड. बोलिए, क्लियर? अंडरस्टूड दिस थिंग? बुक में बहुत ही जस्ट वेरी ब्रीफली जस्ट 3-4 लाइन्स जितना ही मेन कंटेंट उसमें दिया है, बट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए. 4 times कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो फिल्ट्रेट, उसका मीनिंग क्या? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर टू 1200. समझ में आ रहा है, राइट? नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट 300 ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट. ये पार्ट में पीसीटी कल ही हमने लर्न किया था.
पीसीटी, डीसीटी, वो कौन से पार्ट में होता है? कॉर्टेक्स। फिर आता है मेड्यूलरी रीजन। मेड्यूला भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स के पास है आउटर एंड द डीप वन दैट इज द इनर मेड्यूला। क्लियर? सो इनर मेड्यूला में मेन ये पोर्शन में कब तक क्या हो जाता है? 1200 ग्रेजुअली सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज। Understood this? Clear? Right? So counter current mechanism, remember in that two things work parallelly but opposite in direction. Which two things that runs parallelly? One, Henle's loop and blood capillary. Henle's loop में descending to ascending. तो अगर यहां से ही स्टार्ट करें तो descending to ascending blood capillary. Clear? श्योर? नाउ हेनलीस लूप में जब कंटेंट आ रहा है, इनिशियल कितना है? मिलियोस्मोल पर लीटर है 300, राइट? एंड एट द एंड ओवर हियर वापस से जब सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो रहा है, इट बिकम्स सेम लाइक दैट कंसंट्रेशन, दैट इज व्हिच वन? 300 मिलियोस्मोल पर लीटर. बोलिए. क्लियर? अंडरस्टूड दिस थिंग? श्योर? फिल्ट्रेट. Henle's loop is descending limb of Henle's loop is permeable for water. ये टैगलाइन पहले आनी ही चाहिए. Descending limb of Henle's loop is permeable for water. And the ascending limb of Henle's loop for salts, right? Which two salts, right? देखिए थियरी के लिए मेन ये लाइंस की पॉइंट्स लिखोगे इनफ है, राइट? एंड एमसीक्यू के लिए, नीट एमसीक्यूज के लिए ये कीवर्ड्स याद रखना. Which two salts are needed or required to maintain hypertonic condition in interstitial fluid? NaCl and urea. Who will give that NaCl? Ascending limb of Henle's loop. And who will give that urea? Yes. Due to this hypertonic condition, collecting duct also involved in what? Reabsorption of large amount of water with the help of even this urea. तो एक लाइन लिखा था ना मोनोटेलिज्म के टॉपिक में, याद है वो प्रोसेसेस? मैंने बोला जस्ट लाइन अभी रीड कर दो. रीड दैट लाइन. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फर्स्ट. wait listen all of you carefully. Some amount of urea may be retained in the kidney by bricks of some of these animals to maintain a desired osmolarity. समझ में आ रहा है? To maintain desired osmolarity. कौन सा? Hypertonic. That's why the small amount of urea retained over there. ये यूरिया का भी क्या होता है एक्चुअली? आपकी बुक में इतना ही दिया है. यूरिया यहाँ पे आया, वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली दैट कैन एंटर इनटू दिस पार्ट आल्सो. Which one? This ascending limb of Henle's loop. यहाँ से आया, वापस यहाँ पे, नेक्स्ट रिटर्न, हाइपरटोनिक कंडीशन किया, वापस एब्जॉर्प्शन होता है, देन नेक्स्ट, राइट? ये मेन उसका प्रोसेस होता रहता है यूरिया का. क्लियर? तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया दैट रिमेन सर्कुलेटेड इन दैट फिल्ट्रेट ओनली, तो वो हमारे बॉडी बेयर कर सकते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया. बोलिए. अंडरस्टूड दिस? श्योर? अभी हम टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हैं, किसी को भी कहीं पे भी डाउट है प्लीज आस्क मी. क्लियर? आप पॉज कर दीजिए. बताओ. Micturition, simple meaning that यहाँ पे रख दो ऐसा था. Micturition that we call the release. Next process, that's the micturition. Micturition meaning what? Very easy. Releasing of urine outside the body we call what? Micturition. So first we have learned in kidney the nephrons are there. Nephrons make first filtrate and then urine. Which one? Dilute or concentrated? Concentrated, right? Concentrated urine is formed. That urine kidney से कौन लेके आएगा? Ureters to urinary bladder. Urinary bladder, it's a bag-like structure. This bladder gradually filled, right? एक bag जैसा structure है, gradually filled with the urine and gradually expand, right? Now, if this bladder or whenever this bladder completely fills with the urine, on their back stretch receptors are there. Which one? Stretch receptor. Stretching हो रहा है कि maximum इससे ज्यादा अभी stretch नहीं possible है, तो that is the which one? Stretch receptors. That we call which one? Stretch receptors can sense this and उसको senses से sensory impulse, वो sensory impulse में convert होगा
through the sensory neurons it reached to our CNS, central nervous system. Central nervous system through the motor neuron send the message to urinary bladder. Okay, now urinary bladder के जो it's a muscular structure undergoing which part? Contraction. तो वो contraction में जाएगा. Next urethra है. urinary bladder के बाद next part is a which one? Urethra. तो urethra का क्या होगा? urinary bladder, remember this is the main line for MCQ NEET के लिए. urinary bladder get undergoes what? Contraction. तो urethra पहले close होता है या open? Close. Remember. So जब bladder contract होगा तो urethra क्या हो जाएगा? Open meaning relax. Remember urethra that is guarded by the circular muscles का set होता है वहां पे, that we call sphincter. उसको क्या बोलते हैं? Sphincter. Urethral sphincter. Right? Smooth muscles, always remember one thing. Smooth muscles if they are arranged, right? Spindle shape के होते हैं smooth muscles. If they are arranged in a longitudinal pattern, तो वो valve बनाएंगे. क्या बनाएंगे? Valve. Clear? And second is a which one? If they are arranged in this circular pattern, right? It will form a sphincter. It will form what? Sphincter. Sphincter like this. अगर ये contract हो रहा है, relax हो रहा है तो open हुआ, and then contract हो रहा है तो close. Open, close. So जब urinary bladder में urine feel हो रहा है ना? तब urethral sphincter क्या रहेगा? Contract, closed. Contract होगा तो क्या हो जाता है? Closed. Clear? And second thing, जब urinary bladder contract होगा तो urethral sphincter क्या हो जाएगा? Open, relax. And by this way, the urinary bladder release what? Urine outside. वहां पे भी होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. स्फिंक्टर वर्ड आए मीनिंग स्मूथ मसल्स एंड दे आर अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न. वाल्व वर्ड जब भी हम यूज कर रहे हैं, दे आर अगेन स्मूथ मसल्स बट दे आर अरेंज इन अ लॉन्जिट्यूडिनल मैनर. वो ऐसे कर रहे हैं मूवमेंट ओपन क्लोज के लिए, वो सर्कुलर का डिफरेंट हो रहा है. क्लियर? स्फिंक्टर जब भी वर्ड आए मीनिंग स्मूथ मसल्स ही है. स्फिंक्टर हो या वाल्व, स्मूथ मसल्स बट अरेंजमेंट डिफरेंट है. वाल्व में वो लॉन्जिट्यूडिनल है, स्फिंक्टर में वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड है. क्लियर? रिमेंबर वेरी इजी दिस थिंग. वन मोर टाइम. मिक्ट्यूरेशन मीनिंग व्हाट? रिलीजिंग ऑफ यूरिन आउटसाइड. फॉर दैट फर्स्ट ये सेंसेस कहां से स्टार्ट होंगे? द स्ट्रेच रिसेप्टर्स present on wall of urinary bladder, so that gets a sense for that convert into impulse and send the message to CNS. CNS उसको analyze कर देगा and then give the message to urinary bladder through motor neurons. ऐसा कुछ learn किया था sensory? क्या? Reflex action. So this one we call micturition reflex. Sensory ले जा रहा है, motor send कर रहा है. This one we call what? Micturition reflex action. Clear? Next one. जब भी micturition over here, urinary bladder gets the message for what? Contraction. वो urinary bladder contract, तो urethral sphincter relax. दोनों contract नहीं. Urinary bladder urethral sphincter, urinary bladder, urethral sphincter, relax, right? So that the urethra gets open up and then the releasing of urine process takes place, and that we call micturition. Clear? Understood? Next one, then every day how much urine we excrete? Approx. But कितना फॉर्म होता था फिल्ट्रेट पर डे? 180 लीटर्स. इमेजिन हमारा किडनी कितना काम करता है ना? 180 लीटर यूरिन फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे बाय अवर किडनीज, जिसमें से सिर्फ वो रीएब्सॉर्ब कितना करता होगा? जस्ट 1 to 1.5 लीटर यूरिन रिलीज्ड आउटसाइड. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, पीएच स्लाइटली एसिडिक हमने लर्न किया था, दैट इज 6. नेक्स्ट, हाउ मच यूरिया प्रेजेंट इन अवर यूरिन और हाउ मच यूरिया दैट वी एक्सक्रीट पर डे? 25 to 30 ग्राम यूरिया इज देयर. हाउ मच? 25 to 30 ग्राम. सो जाओ. नेक्स्ट वन, कलर विच वन? लाइट येलो और द पेल येलो कलर. जितना कलर येलोइश ज्यादा होता है दैट इंडिकेट्स व्हाट? हाँ,
Dehydration. That indicates what? One of the things, that is the dehydration. Dark yellowish oranges color हो जाए, meaning this our body needs lots of water right now. Clear? So dehydration, color changes से भी क्या पता चलता है? Dehydration के body should be now hydrated. Understood this thing? Clear? So very easy topic this one. Next, last thing, that urine analysis, right? Urine analysis में simple one thing, generally glucose is reabsorbed by which part? PCT, right? Glucose never come into the which one? Our urine. Healthy individual human in that glucose is not present in their urine. But if glucose is present, right, then it indicates what? That patient should be suffering from the which one? Diabetes mellitus. हम सिर्फ एक ही word use करते हैं normally, diabetes, but entire name is what? Diabetes mellitus. Diabetes के different types है, but इंसुलिन के रेफरेंस में जो होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस. मीनिंग कि ये पेशेंट के किडनी पे इफेक्ट हो गया है डायबिटीज का, तभी वो शुगर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है. पीसीटी में डिफेक्ट हुआ है, शुगर रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट शुगर कम इनटू यूरिन. समझ में आ रहा है? मीनिंग दिस इंडिकेट्स व्हाट? समथिंग हैपेंस टू इन किडनी. पीसीटी पार्ट बेसिकली किडनी. क्लियर? सेकेंड वन इज अ कीटोन्यूरिया. कीटोन सुना है? कीटोन बॉडीज जनरली जब हम लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं, फैट बर्न्स होते हैं ना, तब कीटोन्स रिलीज प्रोसेस मसल्स के थ्रू, राइट? सो इन दैट normal level of ketone present in urine, it's okay, but high level of ketones should be not present. Fasting करते हैं तब आते हैं, that's it's okay, that is different story. But normal आप कुछ fast भी नहीं कर रहे हो and still ketone bodies are present in your urine, that condition we call ketonuria. That is also indicates the patient is suffering from diabetes. In which sense? Because insulin, राइट, बॉडी जो है वो ग्लूकोज को ले ही नहीं रहा है. समझ में रहे? सेल्स मींस सेल्स कांट यूज अपटेक दैट ग्लूकोज फॉर मेकिंग द एनर्जी. इंस्टेड ऑफ दैट ग्लूकोज सेल को लग रहा है कि मिल ही नहीं रहा है. वो ग्लूकोज कहां से हो रहा है? ब्लड से सीधा यूरिन में फिल्टर हो, राइट? बट दैट सो बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, देन बॉडी चूज द अनदर पाथवे फॉर गेटिंग एनर्जी. यू नो एम्फिबॉलिक पाथवे है ना? यू हैव लर्न दैट. सो ग्लूकोज की जगह पे वो फैट्स बर्न करना स्टार्ट कर देता है. तो फैट्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? कीटोन बॉडी. ऑलवेज वी कैन से दैट अगर फास्टिंग है तो कीटोन्स प्रेजेंट हो गया, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट फास्टिंग नहीं है, राइट, एंड स्टिल इनफ अमाउंट में फूड इंटेक है, हम कीटोन्स आ रहे हैं, मीनिंग समथिंग हैपेंस टू दैट इंसुलिन लेवल, राइट? इंसुलिन के लेवल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है. तो सेल्स कुड नॉट अपटेक दैट glucose for that utilization and make energy. So body के cells क्या ले रहे हैं? फैट्स. फैट में से एनर्जी दे रहे हैं, राइट, और उसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इंसुलिन की इफेक्ट्स की वजह से हुआ. इंसुलिन की इफेक्ट मीनिंग पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? डायबिटीज मेलिटस. समझ में आया? क्लियर? तो एक है अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है फॉर दैट द कंडीशन, ग्लूकोज इन ब्लड नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लूकोज इन यूरिन, दैट वी कॉल ग्लाइकोसूरिया. विच वर्ड? ग्लाइकोसूरिया. कीटोन बॉडीज इन यूरिन वी कॉल कीटोसूरिया, कीटोन्यूरिया, सॉरी. दिस वन वी कॉल विच वन? कीटोन्यूरिया. क्लियर? कीटोन in that's the urine, ketonuria, glycosuria. Understood? These two are indicates which one over here? Diabetes mellitus. बोलिए. Understood? Sure? Stop कर दो.